Hello everyone, very good evening. I hope you all are good, doing well, and happy, fine. So today in the class, what we are going to read, we are going to cover the rest portion of wave chapter. So आज की क्लास में हम basically standing wave को थोड़ा सा quickly revise करेंगे. That is formation of standing wave on a string and in air column. ठीक है. उसके बाद largely we will be discussing beat and Doppler effect. ठीक है. So let's get started. देन सो हमने कल के क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इफ स्टैंडिंग वेव इज गेटिंग फॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग देन what are the natural frequencies that will get excited, right? So we studied two cases. In first case, both end of the string was what? Both end of the string was fixed. ठीक है, दोनों ही फिक्स था. Fixed means here the displacement will be always zero. Done. And that makes it what? It makes it node. Done. And one end of a string is free means one, I don't know why oblique line is getting drawn here. One end is fixed, but another end is what? It is free to move. So maybe it is attached with some ring and it can slide on this wall, right? So in both cases, we studied that in the first case, natural frequencies getting excited was of what pattern? N by 12 into velocity, that is root under tension by mu. So here n ka value will vary from 1 2 3 4 kind of. Okay, so all frequencies we are going to get here. Then odd and even, all harmonics we are going to get. So first harmonic कहने का मतलब n equal to 1. Done. And that is fundamental frequency also. Now second harmonic means n equal to 2, and that is basically first over 2. Clear है? Now coming to one end of the string is free में हमें क्या मिला था? We got general formula for the frequency was this, and here again n will vary from 1 2 3 4 5. And if n will vary from 1 2 3 4 5, 2n minus 1 value will be like n 1 अगर रखोगे तो 1 आएगा. If you are going to put n equal to 2, it will be how much? 3. So 1 3 5 kind of. So here only odd harmonics we are going to get. Again, fundamental frequency और फर्स्ट हार्मोनिक के लिए इनका वैल्यू 1 रखोगे, सेकेंड हार्मोनिक के लिए इनका वैल्यू 2, एंड दैट इज बेसिकली द फर्स्ट ओवरटोन. ओके, चलो ठीक है. और थर्ड हार्मोनिक ऑड हार्मोनिक है तो थर्ड हार्मोनिक उसको बोलेंगे, एंड फॉर थर्ड हार्मोनिक n का वैल्यू 2 रख रहे हैं. ठीक है, चलो. नाउ स्टैंडिंग वेव इन एयर कॉलम, दिस थिंग आल्सो वी डिस्कस लार्जली. सो एयर कॉलम में स्टैंडिंग वेव हम कैसे बना सकते हैं? सपोज साउंड वेव, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, इज ट्रैवलिंग इन द एयर कॉलम. सो इफ देयर इज अ एयर कॉलम and the wave is traveling, suppose this is A, this is B, and your sound wave is traveling, one wave is traveling from A to B and another is traveling from B to A, and when they will meet together they will form a standing wave. Then and if this air column is closed at one end and open at another end, this thing will be called closed organ pipe. है ना, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये जो एंड है वो क्या है? सॉलिड है, दैट इज क्लोज्ड है. और यहाँ पे जो ये कॉलम है, इसका दूसरा एंड क्या है? ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, राइट? सो दिस इज अ क्लोज ऑर्गन पाइप. Done. And close organ pipe कहने का मतलब one end is closed and another is open. So close end के पास हमेशा displacement का क्या होगा? Displacement का node होगा, है ना, वहां पे zero displacement होगा. And is yesterday in the class we discussed, जहां पे displacement का node होगा वहां पे pressure का anti node होगा, यानी कि they will be 90 degree out of phase with each other. Done. So this thing we have done. The open end of air column is approximately a displacement antinode and a pressure node. और जहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा, ओपन एंड है. ठीक है, सो दैट पॉइंट विल बी बेसिकली फॉर प्रेशर अ नोड. यानी कि अगर आप प्रेशर के लिए सेम डायग्राम, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने बनाया, अगर आप प्रेशर के लिए सेम डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे नोड बताओगे ओपन एंड पे, और क्लोज एंड पे क्या बताओगे? Antinode. So it will get reversed like this. Then, so when one is at maxima, another is at minima, kind of. Okay, understood? The closed end is a displacement node and a pressure antinode. So closed end जो होगा वो displacement का node होगा और pressure का क्या होगा? Antinode होगा. Done?
So this thing we studied, fundamental open pipe, both end of the pipe are open. इसको हम क्या बुला रहे थे? इसको बुला रहे थे open organ pipe. So this is your open organ pipe. Then in this case, if we have to define the fundamental mode or first harmonic, how we will write it? So if both the ends are open, it means for displacement thing, both the open end will act as antinode. ठीक है, so कुछ ऐसा बनेगा. And for pressure, if you are going to draw the same thing, it will look like this, just opposite of that. कहने का मतलब कि if your air column is of length L, ठीक है, if it is of length L, then in terms of wavelength, this L can be written as what? So for fundamental mode, we have we have to make sure that ends are antinode. अब डायग्राम कैसे बनाओगे? सो डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, है ना, ऐसे. So this end is antinode, this end is also antinode. Then so this is 1/4 of the wave and this is 1/4 of the wave. So total length will become equal to how much? लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4. ये तो तुम लोग समझ रहे होगे कि 1/4 ऑफ वेव है, क्योंकि कंप्लीट वेव हम कैसे लिखते हैं? ऐसे. ठीक है, यहां से यहां तक क्या लिखोगे? 1/4. सो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहां से यहां का मतलब क्या है? इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक. सो अगेन 1/4. Then so this is lambda by 2. Lambda by 2 will be equal to how much? L. ठीक है, लैम्डा को क्या लिख सकते हो? लैम्डा को क्या लिख सकते हो? v velocity by frequency. So frequency will be equal to how much? v by 2l. यानी कि फंडामेंटल मोड और फर्स्ट हार्मोनिक के केस में हमें फ्रीक्वेंसी क्या मिला? v by 2l. सेम थिंग वी कैन डू फॉर व्हाट? सेकंड हार्मोनिक. सेकंड हार्मोनिक के लिए आप डायग्राम ऐसे बना सकते हो. अगेन दिस लेंथ विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4 and this length will be equal to lambda by 2 and again this will be equal to lambda by 4. So lambda by 4 plus lambda by 2 plus lambda by 4 कितना हो जाएगा? बताओ कोई भी, तुम लोग सुन रहे हो ना? कितना आएगा लेंथ का वैल्यू? लेंथ का वैल्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा. ठीक है, प्रेशर के लिए हम लोग डायग्राम ऐसा बनाएंगे, प्रेशर वेव के लिए. यस नरेश, थैंक यू. सो यहाँ पे L इक्वल टू लैम्डा. लैम्डा का वैल्यू अगेन क्या पुट करोगे? V बाई म्यू. सो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? V बाई L, यानी कि 2V बाई 2L. सो अगर तुम्हें याद है तो ये सेम वैसा ही पैटर्न आ रहा है जैसा कि हमें स्ट्रिंग के लिए बोथ एंड फिक्स्ड के केस में आया था. ठीक है, सो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला इफ यू आर गोइंग टू राइट, देन इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? NB by 2L. So all harmonics we are going to get in case of open organ pipe. Then clear है? Same terminologies will get used, like first harmonic means first harmonic means fundamental frequency, n का value 1. Second harmonic means n का value 2, that will be first overtone. Same as that. Okay, चलो. So this is this. Now one end of the pipe is closed. और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. दो इसका दोनों एंड क्लोज नहीं है, दोनों एंड क्लोज नहीं हो सकता, क्योंकि देखो बांसुरी भी है तो यू हैव टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट, सो यू हैव टू ब्लो एयर इनटू इट. एक एंड तो ओपन रखना पड़ेगा. ठीक है, सो जब वन एंड क्लोज होता है पाइप का तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बुलाते हैं. ठीक है, सो इन दिस केस अगर एक एंड क्लोज है तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? वो कुछ ऐसा बनेगा. यानी कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये एंड क्लोज है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? नोड होगा. एंड ओपन एंड के पास डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? एंटी नोड होगा. ठीक है, सो काइंड ऑफ दिस होल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वेव. डन. दिस होल क्या है तुम्हारा? 1/4 ऑफ द वेव है. सो एल का वैल्यू क्या लिखोगे? लैम्डा बाई 4. अगेन लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो V बाई म्यू. म्यू का वैल्यू यानी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V बाई 4L. सिमिलरली यू कैन गो फॉर द थर्ड हार्मोनिक. अगेन यहाँ पे हमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलेगा. ठीक, इसलिए यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक का डिस्कशन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो हमें मिल नहीं रहा. जैसे सेकंड डायग्राम तुम कैसा बना सकते हो? ऐसा बना सकते हो, है ना. और इस केस में अगर तुम ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कितना हो गया? लैम्डा बाई 2. और ये डिस्टेंस कितना हो गया? लैम्डा बाई 4. सो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 कितना होगा? 3 लैम्डा बाई 4. And this 3 lambda by 4 is equal to what?
दैट इज इक्वल टू एल. अगेन लैम्डा का वैल्यू पुट करोगे, क्या लिखोगे? लैम्डा विल बी इक्वल टू v बाई म्यू. सो म्यू का वैल्यू क्या आ रहा है? 3v/4l. सो यहाँ पे n का वैल्यू 3 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा. देन दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन. ठीक है. सो देखो हर डायग्राम में करस्पॉन्डिंग प्रेशर वेव का डायग्राम बनाया हुआ है. मैं उसको ज्यादा हर केस में डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि यू ऑलरेडी नो जहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वहां प्रेशर का एंटी नोड होगा. सिंपल, बस उसी को रेप्लिकेट करते जाना है. ठीक है. सो हमें क्लोज ऑर्गन पाइप के केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिला वो था v/4l. सेकेंड डायग्राम, जो सेकेंड पॉसिबल डायग्राम हम बना सकते हैं, उस केस में जो हमें फ्रीक्वेंसी मिला वो कितना मिला? 3v/4l, ना कि 2v/4l. इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे भी हमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग सेकेंड वन एज थर्ड हार्मोनिक एंड दिस इज फर्स्ट ओवरटोन. ठीक है. चलो, so general formula, if you have to write, general formula will be again same as same as what we got in the case of a string free at one end. Done. There also we were only getting what? Odd harmonics. So this is this. N ka value 1, 2, 3, 4, 5, so on. Okay. If you're putting n equal to 1, you will get fundamental frequency or first harmonic. If you're putting n equal to 2, you will get third harmonic or first overtone. N equal to 3 means you are going to get fifth harmonic and second overtone. Yes. ठीक है. सो इस तरह से टर्म्स को याद रखना, जो टर्म्स यूज हो रहे हैं ना उनको याद रखना बहुत जरूरी है. एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस थिंग, standing wave getting formed on a string and standing wave getting formed in organ pipes? किसी को इसमें प्रॉब्लम है? If not, then we will move ahead. But let me know if anyone has any trouble. अगर मैं फास्ट भी बोल रही हूँ, यू कैन टेक्स्ट मी लाइक कि मैम प्लीज गो स्लोली. ठीक है. तुम कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी, मतलब क्लास के रिगार्डिंग एनी सजेशन, एनीथिंग यू हैव टू से, यू कैन टेल इट टू मी. नो इश्यूज. ओके. आई गॉट. ओके, योगा. ओके, डन. थैंक यू. नो डाउट. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. सो हमारा क्या क्या दिखा? बोथ एंड्स ऑफ द पाइप आर ओपन, तो हमें ये मिलेगा. वन एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज, देन ये मिलेगा. ठीक है. अभी तक हम लोगों ने जो जो क्वेश्चन, जो जो टॉपिक पढ़ा, उससे तुम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस डील कर रहे हैं स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन इन ऑन अ स्ट्रिंग और इनसाइड पाइप्स. ठीक है. सो इन क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट करना. 15 कहने का मतलब चैप्टर 15 is wave thing, sound wave thing in your NCERT, and this 11 means question number. So go to chapter number 15 and go to these corresponding questions and do solve it. Okay. Now what we are going to read, beats and Doppler effect. ठीक है. Doppler effect को we will simplify very much. Beats just a concept. चलो देखते हैं beats क्या है. ठीक है. So beat क्या है? बीट बेसिकली जब कोई भी साउंड हमारे एरिया में प्ले हो रहा है, एंड इफ दैट साउंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ one or more than one wave, like if somebody is, like if you are in a room and there are two persons speaking, right? So two sound wave is getting generated such that the frequency of those two sound wave is not much different. ठीक है. So what is the assumption here? Frequency of those two sound wave is not much different, means they are almost equal to each other, almost, but not equal. Okay. So those two sound wave, there is a room, 3 persons standing, 2 persons speaking, and third person is you observing the sound or experiencing it. What you will realize the intensity of both sound getting mixed is changing. ठीक है. यानी कि कभी तुम्हें थोड़ा ज्यादा लाउड सुनाई दे रहा है, कभी कम, कभी टोन, जैसे इन जनरल व्हेन यू स्पीक, you don't speak quite in monotony, like your voice rise and fall, kind of.
ठीक है। सो बीट का मतलब क्या है? इफ यू टॉक अबाउट बीट्स आर द पीरियोडिक एंड रिपीटिंग फ्लक्चुएशन heard in the intensity of sound. You are listening to some sound and its intensity means loudness. If its intensity is not constant, it's fluctuating, it's rising and falling. Okay, according to certain pattern. Then we will say we are hearing beat. Okay, so the beats are periodic and repeating fluctuation heard in the intensity of a sound when two sound waves of very similar frequency interfere with one another. And when we get to hear beat, beat हम कब सुनते हैं? जब दो साउंड वेव जो कि काफी सिमिलर फ्रीक्वेंसी के हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तब. So whatever musical instruments, जैसे tuning of tabla and all things we do, so we keep beat in our mind. So beat is a very a beautiful concept actually in musical industry. It has a wide role to play. So it's also the part of physics. जैसे यहाँ पे तुम्हें एक आवाज आ रही है ना? You all can hear, right? हम्म, हम्म, देख सुनाई दे रहा है? See, intensity is not constant, it's varying. And it's varying in such a way that तुम्हें साउंड का एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे तबला बजता है ना, तो धिन धिनक कुछ ऐसा होता है ना, उसका एक पैटर्न होता है. ऐसा नहीं होता है कि रैंडम नॉइज नहीं होता, वो एक पैटर्न में होता है. ठीक है. सो दिस इज योर बीट. बेसिकली बीट मीन्स beat is what? Fluctuation in the intensity of sound when two sound wave of very similar frequencies interfere. Simple. ठीक है. चलो बीट को हम पढ़ते हैं, थोड़ा बीट निकालेंगे कैसे, तो मैथमेटिकली पढ़ते हैं. फर्स्ट वेव यू आर टेकिंग इज दिस वन. ठीक है. a cos kx minus omega 1t. So the frequency of first wave, angular frequency is omega 1, and there is a relation between angular frequency and frequency. So what is that? Omega equal to हम क्या लिखते हैं? 2 pi f लिखते हैं ना. So omega 1 को आप क्या लिख सकते हो? 2 pi f1 लिख सकते हो. ठीक है. So first wave is this and second wave is this. So for the first wave, angular frequency omega 1. For the second wave, angular frequency is omega 2. Okay. Now what is happening? These two waves are coming together and they are mixing with each other. Then and they will mix and produce beat. ठीक है. Now for the simplicity of equation, मैं ये कह रही हूँ कि सपोज कर लो फर्स्ट वेव का मैंने ऐसा कुछ बनाया और सेकंड वेव के लिए भी, सिंस इनका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो डिफरेंट पैटर्न दिखेंगे. मीन्स स्पेस बिटवीन टू crest and two trough will look different because their frequency is different, right? Now for simplicity of the equation, हमने क्या किया? x को 0 मान लिया. मीन्स we are observer is here. ठीक है. यहाँ पे ये पर्सन खड़ा है और वो बीट सुनने की कोशिश करेगा. सो पर्सन कहाँ है? x इक्वल टू 0 पे है. x इक्वल टू 0 पे ये दोनों वेव आकर मिलेंगे. सो why I have taken x equal to 0? Just to make the calculation more easier. So in first, if we are taking x equal to 0, y1 क्या हो जाएगा? a cos minus omega 1t. और तुम्हें पता है कि cos minus theta क्या होता है? cos theta होता है. So basically first wave will become a cos omega 1t and second wave will become a cos omega 2t. Now we have to mix these two. It means we have to add these two. Add कर दो आप superposition principle से. This thing we studied like long back, right? So अब इन दोनों को ऐड करो. cos a plus cos b का फॉर्मूला लगा दो. So cos a plus cos b क्या होगा? cos a plus b by 2 cos a minus b by 2. So this is 2a cos, इसको क्या करोगे? omega 1 t minus omega 2t by 2. So this thing you are getting and this thing you are getting. So हमें क्या मिल रहा है? हमें ये मिला. डन. दोनों वेव को हमने x इक्वल टू 0 पे ऐड किया, हमें ये मिला. अब देखो इसमें जो दिस टर्म है, लेट्स से दिस इज एम्पलीट्यूड एंड दिस इज what? This is another cos function and we will say this amplitude is also the function of here time. एक काम करते हैं, हम एम्पलीट्यूड पे फोकस करते हैं क्योंकि हमें किसकी बात करनी है? बीट का मतलब राइज एंड फॉल ऑफ इंटेंसिटी.
इंटेंसिटी गेट्स डिसाइडेड बाय व्हाट? कोई भी वेव का इंटेंसिटी उसके एम्पलीट्यूड से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है? एम्पलीट्यूड से डिसाइड होता है। सो यहाँ पे एम्पलीट्यूड को हमने क्या लिया? 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2t। ठीक है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी क्या है? एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी इज दिस, frequency of amplitude is what? This one? Everyone agree? एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी क्या दिख रहा है? फर्स्ट वेव का फ्रीक्वेंसी क्या था? ओमेगा 1। सेकेंड वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा 2। मैंने दोनों वेव को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद एक पर्टिकुलर टर्म को मैं एम्पलीट्यूड बोल रही हूँ। मैं जिस चीज को एम्पलीट्यूड बोल रही हूँ उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुम्हें क्या दिख रहा है? Am I do you agree with what I have written here? Yes. Everyone come on fast. एम्पलीट्यूड क्या लिखा है मैंने? 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2t। ठीक है, सो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आया है, एम्पलीट्यूड का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? इफ आई आस्क, तुम लोग ऐसे साइलेंट हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होगा? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2। दिस इज दिस। एनीवन हैविंग एनी डाउट? यस, नो वन सेइंग एनीथिंग, आई एम नॉट एबल टू गेट इट। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सो हमें अब देखो, अगर तुम डायग्राम बनाओगे, दिस इज डायग्राम ऑफ फर्स्ट वेव दैट इज y1, दिस इज डायग्राम ऑफ सेकेंड वेव y2 एंड दिस इज डायग्राम ऑफ थर्ड वेव दैट इज y3। अगर तुम y3 को ध्यान से देखो तो y3 कुछ ऐसा दिख रहा है ना? ओके नरेश, ठीक है, वही मैं पूछ रही थी, तुम लोग कुछ बोले नहीं तो मैं भी चुप हो गई। So what is beat is what? Beat is rise and fall of intensity. कब intensity का rise and fall? when? जब दो वेव आपस में मिल रहे हैं, और वो दो वेव कैसे होने चाहिए? दो वेव such that their frequencies difference is very little. It means here the first wave, this k is wave number and this is angular frequency. So frequency of first wave is equal to how much? Angular frequency omega 1, and for second angular frequency is how much? Omega 2. If their frequencies are quite similar, it means omega 1 is quite similar to omega 2. ठीक है, दोनों सिमिलर हैं। उसके बाद हमने क्या किया? y1 प्लस y2 को हमें ऐड करना है। नाउ at different positions you will get different scenarios। कहने का मतलब, मैंने यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम तुम लोगों को दिखाया था कि अगर मैं y1 ऐसे बना दूं और यहाँ पे y2 को ऐसे बना दूं और ऑब्जर्वर को कहाँ पे रख दूं? x इक्वल टू 0 पे। सो x इक्वल टू 0 मीन्स कोई भी स्पेस में, यहाँ पे है x इक्वल टू 0 और यहाँ पे y1 भी पहुंच रहा है और यहाँ पे कौन पहुंच रहा है? y2 वेव भी x इक्वल टू 0 पे पहुंच रहा है, दैट इज ओरिजिन। ठीक है, सो एट ओरिजिन जब ये दोनों वेव मिलेंगे तब इस जो ऑब्जर्वर वहां खड़ा है उसको कैसा बीट सुनाई देगा? ठीक है, मींस कितना राइज एंड फॉल होगा? बहुत ज्यादा होगा? कितने डिफरेंस का होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट पहले क्या है कि ऑब्जर्वर को मैंने ओरिजिन पे फिक्स किया, यानी कि एक्स को मैंने 0 कर दिया। अब एक्स को 0 करोगे तो पहला वेव हो गया a cos ओमेगा 1t, दूसरा हो गया a cos ओमेगा 2t। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ऐड कर दो, सिंपल है, मैथ्स यूज करना है, cos a प्लस cos b। सो cos a प्लस cos b का अगर फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो होता है 2a cos, अगर अगर तुम्हारा यहाँ पे फॉर्मूला ये है कि a cos x प्लस b cos y, अगर ऐसा है तो कैसे लिखोगे? सॉरी, यहाँ भी a लो, एम्पलीट्यूड सेम करना है। ठीक है, सो क्या होगा इसका? या फिर अगर मैं तुम लोगों को और इजीली, इतना कॉम्प्लिकेट करने का जरूरत नहीं है, कॉस ए कॉस भी सबको पता है या नहीं?
कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है? ये होता है कॉस ए प्लस बी बाई टू, और यहाँ पे इनटू, इनटू कहने का मतलब इसको ऐसे कर लो, इनटू कॉस, ओके लेट मी रिमूव एवरीथिंग, सो कॉस ए प्लस बी, अगेन कॉस ए प्लस कॉस बी लिख रहे हैं ना हम लोग, सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू प्लस, सॉरी इनटू cos a minus b by 2. So this formula we have used here. ठीक है, cos a plus cos b. यहाँ पे तो a कॉमन हो जाएगा ना, so this is a and this is b. a plus b एक बार किया और दूसरी बार a minus b करोगे, सिंपल, put the formula. So if you are going to put the formula, y का वैल्यू क्या आया? y का वैल्यू कुछ ऐसा आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, मैंने ये बोला था कि ओमेगा वन इज नियरली इक्वल टू ओमेगा टू। सो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू क्या होगा? ग्रेटर देन होगा ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू। और कितना ग्रेटर होगा? थोड़ा ज्यादा ग्रेटर होगा, क्योंकि ओमेगा वन और ओमेगा टू के बीच का डिफरेंस काफी कम है। सो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन से दैट ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू is very very greater than omega 1 plus omega 2. Then again हमें कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, I want to make it more and more simpler for you people. So इसलिए मैंने ये बोला कि यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोल दिया, इस फ्रीक्वेंसी को सपोज ओमेगा बी बोल रहे हो और इस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा ए बोल रहे हो, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद 2a cos ओमेगा बीटी को मैंने क्या बोल दिया? इसको मैंने बोल दिया एम्पलीट्यूड। सो दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर एम्पलीट्यूड। बस हमें यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है। हमने दो वेव को ऐड किया, दोनों वेव को ऐड करने के बाद तुम्हें याद क्या रखना है, अभी मैं बताती हूँ। हमने दो वेव को ऐड किया, फर्स्ट वेव का फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा वन। सेकेंड वेव का फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा टू। जो रिजल्टेंट वेव आया उसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या लिख रहे हैं हम? वो हम लिख रहे हैं ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू। अगेन वाई नॉट ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू? because omega 1 minus omega 2 is far far greater than omega 1 plus omega 2 and बीट को क्लियरली सुनने के लिए लेसर वैल्यू को हमें लेना पड़ेगा। दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग, ओके, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही थी। सो यहाँ पे ओमेगा बी को आप क्या लिखोगे? ओमेगा बी इज बेसिकली द एम्पलीट्यूड्स फ्रीक्वेंसी एंड दैट इज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद देखो, अब हमारा एम्पलीट्यूड पे फोकस करना है हमें। कितना आया? 2a cos ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू टी, यही आया ना। बीट क्या है? राइज एंड फॉल ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किससे डिटरमिन होता है? एम्पलीट्यूड से। अब देखो एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू जब होगा तब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। सो व्हेन विल बी द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम? कब होगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम? जब इसका वैल्यू क्या हो? मैक्स हो, ठीक है, प्लस में या माइनस में। सो कॉस का मैक्स वैल्यू क्या होता है? आइदर प्लस वन या माइनस वन। मैक्स इन मॉड्यूलस में मैं मैक्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो इंटेंसिटी होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तुम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। सो दिस इज दिस। नाउ ए मैक्स के लिए मैं क्या लिखूंगी? तुम लोग बस ध्यान से भी फॉलो करते जाओ, आगे मत देखो। ए मैक्स को क्या लिखोगे? ए मैक्स कब होगा? ए मैक्स 2a होगा। और ये 2a कब होगा? जब cos ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू टी का वैल्यू कितना आएगा? 1 प्लस माइनस 1, ठीक है। और ये प्लस माइनस 1 कब आएगा? जब मुझे टाइम का वैल्यू रखना होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा। सो अगर मैं टी का वैल्यू 0 रखूं तो ये जो टर्म है, ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा? इस टर्म को चलो मैं फाई बुलाती हूँ। अगर मैं टी का वैल्यू 0 रखूं तो ये पूरा टर्म, और इस पूरे को मैं फाई बुलाती हूँ, ठीक है, इनटू लाइक ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू इंटू टी को फाई बुलाते हैं, ठीक है, टोटल को फाई बुलाते हैं। कॉस के अंदर जो भी एंगल है उसको फाई बुलाते हैं सपोज। सो टी को 0 रखोगे तो फाई क्या हो जाएगा? 0। और जब फाई 0 होगा तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। नाउ अगर मैं टी का वैल्यू रख दूं
1/ω1 माइनस, अगेन देखो हमें फ्रीक्वेंसी से डील करना है, यहाँ पे है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एक काम करते हैं, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेते हैं। यानी कि हमारे फाई का वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 1 को क्या लिख सकते हो, 2πf1 लिख सकते हैं ना, ओमेगा 2 को क्या लिख सकते हैं, 2πf2। ठीक है, सो तुम लोग ध्यान से लिखो, F2 ऐसे लिख सकते हैं, ω1 माइनस ω2 को डिवाइडेड बाई 2 × t, यही है ना फाई। अब यहाँ पे 2π को कॉमन ले लो, 2 कैंसिल होगा, पाई बचेगा, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2 × t, दिस इज आवर फाई। सो मैंने पहले t का वैल्यू 0 लिया, फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू 1। अब मैं देखो t का वैल्यू क्या लेने वाली हूँ, सपोज कर, सॉरी 2 तो कट हो जाएगा ना, ठीक है। अब मैं पाई का सॉरी टी का वैल्यू क्या लेने वाली हूँ, 1/f1 माइनस f2। अगर टी का वैल्यू यहाँ पे 1/f1 माइनस f2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू पाई हो जाएगा, और फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई, और कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1। अगेन एम्पलीट्यूड का मॉड्यूलस मैक्सिमम होगा। अगेन अगर मैं टी का वैल्यू अब अगर मैं रखूं 2/f1 माइनस f2, तो क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू हो जाएगा 2π। अगेन cos 2π क्या होता है, 1। सो मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब हो रहा है, कब हो रहा है, t इक्वल टू 0 पे था, और t इक्वल टू 1/f1 माइनस f2, और t इक्वल टू 2/f1 माइनस f2। ठीक है, इनके बीच का इंटरवल कितना दिख रहा है तुम्हें, अगर तुम इंटरवल की बात करो तो 1/f1 माइनस f2, यहाँ भी कितने इंटरवल के बाद फिर से मैक्सिमम हुआ है, 1/f1 माइनस f2। ठीक है, दिख रहा है ना सबको। सो अब मैं क्या बोलूंगी, अब मैं यहाँ पे ये बोलूंगी कि 1/f1 माइनस f2 टाइम के बाद हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, मैक्सिमम, यानी कि मुझे राइज सुनाई देगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि दिस इज बिकमिंग द टाइम पीरियड थिंग, है ना, टाइम पीरियड हो रहा है कि नहीं, तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, t इक्वल टू 0 पे मैक्स, अगेन t इक्वल टू 1/f1 माइनस f2 पे मैक्स, अगेन 2/f1 माइनस f2 पे मैक्स, तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना है, 1/f1 माइनस f2, है ना। यानी कि इतने टाइम में तुम्हें कितना राइज एंड फॉल सुनाई दे रहा है, 1। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं इतने टाइम में इतना, सो एक सेकेंड में कितना सुनाई देगा, 1/f1 माइनस f2 करोगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, f1 माइनस f2, एंड दिस इज कॉल्ड योर बीट। Beat is what? Number of rise and fall you will listen in 1 second. That is your beat. So ये सारा डेरिवेशन हुआ, इसको करने का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। लेकिन अगर मैं समरी पे आऊं तो अगर तुम्हें पहला वेव दिया है F1 फ्रीक्वेंसी का, दूसरा वेव दिया है F2 फ्रीक्वेंसी का, हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट यू आर गोइंग टू लिसन, F1 माइनस F2, गिवन F1 इज ग्रेटर देन F2। ओके, सो कैसे कैसे आया, ये सबको समझ में आया, एवरीवन क्लियर विद दिस? आई वांट टू मूव ऑन टू डॉपलर फर्स्ट। चलो, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? Yes, Sasi, Naresh, Yoga, Divyans, and every other people whom I'm not able to see. ये कुछ लोगों का ही नेम दिखता है। Anyone, any doubt? Come on, you can ask me. No worries. It is clear, no ma'am. Okay, thank you. Thank you so much. तुम लोग बड़े समझदार हो। अब देखो डॉपलर इफेक्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग है, इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। डॉपलर इफेक्ट है क्या, जैसे अगर मैं तुम लोगों को पहले समझाऊं, सपोज कर लो हियर देयर इज अ सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है, एंड हियर यू आर स्टैंडिंग, देन this is at rest and you are also at rest, so whatever wave is coming from here is reaching you, suppose, so wave का कुछ frequency होगा, done, and if both source and observer are in rest, तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा वो वेव का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। ठीक है,
Done. But if source is moving towards observer, away from the observer, or if observer is moving towards or away from source, or if both are moving with respect to each other, then ऑब्जर्वर के पास जो साउंड की फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड वेव. अगेन व्हाई डिफरेंट, दैट वी विल एक्सप्लोर इन डायग्राम्स अहेड. ठीक है, सो बेसिकली डॉपलर इफेक्ट इज दिस. इट अप्लाइज टू बोथ साउंड एंड लाइट. लाइट में भी तुम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, सो ये टॉपिक तुम्हें काम आएगा 12th क्लास में. ठीक है, अगेन आई विल गो विद द बेसिक. अगर बेसिक तुम्हें समझ में आ गया तो यू कैन जस्ट डिराइव इट वेरी इजिली. ठीक है, सो अभी पहले हम समझते हैं कि लाइक इफ सोर्स और इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, देन व्हाई frequency getting heard by observer will be different from the original frequency of what source or wave. ठीक है, क्यों डिफरेंट होगा? लेट्स हैव अ लुक. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला जो डायग्राम जो अभी तुम्हें दिख रहा है, in this case source is what? In this case source is at rest. so source भी रेस्ट में है और ऑब्जर्वर भी क्या है? रेस्ट में है. यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है ना, इस डॉट से ऐसे वेव निकल के बाहर आ रहा है. सो इमेजिन कर लो, यू हैव ड्रॉप्ड अ पेबल इन अ वाटर एंड वाटर करंट इज गेटिंग जनरेटेड, दैट इज वेव, वाटर वेव, राइट? सो दिस वेव इज गेटिंग जनरेटेड लाइक दिस, and whatever frequency of wave is getting generated, same frequency will get heard by this person, because since both are in rest, the shape of wave, this shape of wave is not getting distorted. If source will move, the shape of wave will change. If observer will move, shape of wave will change. Again, shape से frequency का क्या लेना देना है? तो तुम ध्यान से यहाँ पे देखो, I am showing you this wave. ओके ऐसा, और मैं एक दूसरा वेव दिखा रही हूं ऐसा. सो इन फर्स्ट डायग्राम वेव इज गेटिंग रिपीटेड आफ्टर लॉन्ग टाइम. सो हियर टाइम पीरियड अगर t1 है और यहाँ पे देखो वेव जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे टाइम पीरियड t2 ले लो. सो t1 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन t2. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t. सो डेफिनेटली f1 इज लेस देन f2. सो शेप ऑफ वेव मैटर, ये सिग्निफिकेंट है. और शेप ऑफ वेव चेंज कब होगा? जब तुम्हारा ऑब्जर्वर क्या है? ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है, देन शेप इज गोइंग टू चेंज. ठीक है, हाउ विल इट चेंज? तुम डायग्राम देख सकते हो. आगे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, हियर इज द सोर्स. ठीक है, रेड रेड डॉट जो दिख रहा है ना, दैट इज योर व्हाट? सोर्स. और यहाँ पे ऑब्जर्वर है. ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां से वेव निकल रहा है एंड दिस सोर्स इज ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड. सोर्स इज नॉट इन रेस्ट, इट इज मूविंग फॉरवर्ड. और देखो जब ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है? क्या दिख रहा है तुम्हें? तुम लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं तुम लोगों को कोशिश करूंगी, आई विल टू मेक यू अंडरस्टैंड. सपोज कर लो दिस इज द सोर्स, राइट? एंड दिस at t equal to 0, ध्यान से सुनना, at t equal to 0 it generated a wave. ये सोर्स ने t equal to 0 पे एक वेव जनरेट किया एंड आई एम ड्रॉइंग इट शेप at t equal to 0 ऐसा. ठीक है, मेरे डायग्राम में सेम नहीं गई मसला. सो दिस इज द सोर्स और t equal to 0 पे जो वेव जनरेट हुआ उसका शेप ऐसा है. ठीक है, नाउ वेव हैज अ वेलोसिटी, जनरेट हुआ है, वो आगे की तरफ बढ़ेगा. सो ये सर्कल जो है वो क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ रहा होगा. It got generated at t equal to 0 and it is moving forward. ठीक है, and what is happening? मैं इसका और एक बड़ा डायग्राम बनाती हूँ. So at some what? At some t equal to t. ठीक है, so एक बड़ा सा ऐसे लिया मैंने. इनिशियली t equal to 0 पे सोर्स यहाँ था. ठीक है, और सोर्स जब यहाँ था तब उसने t equal to 0 पे एक वेव जनरेट किया था, जिसका डायग्राम फिगर 1 में मैंने ड्रॉ किया. ठीक है, now I'm talking about time t equal to another t. Suppose कर लो at time t equal to t1 I'm talking about and source is moving. source move करके यहाँ चला गया. ठीक है, अब यहाँ पे जब पहुंच गया सोर्स, तो अगेन वहां पे वो क्या जनरेट करेगा? वेव. और वो जब जनरेट करेगा तो वेव कुछ ऐसे जनरेट हो. डन. सो तुम देख रहे हो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? घट गया, और यहाँ पे ये डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है. डन.
why this shape change is happening means the here distance between these two waves is larger and here it is more crowded. Why? Because wave is moving towards right, and if wave is moving towards, sorry, not waves, source of wave is moving towards right, and when source is moving it will generate wave, and all with already generated wave it will mix and it will get crowded. तुम्हें दिख रहा है ना, जैसे पहले डायग्राम में मैंने क्या दिखाया था, यहाँ पे देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रह रहा है, दो वेव के बीच का, क्योंकि सोर्स मूव नहीं कर रहा। तुम इमेजिन करो यहाँ पे सोर्स इधर की तरफ मूव करने लगा तो क्या होगा, इधर इधर वाले वेव्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा और इधर वाले के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, सो काइंड ऑफ शेप ऑफ वेव में डिफरेंस आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो ऑब्जर्वर है उसको फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल साउंड की फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई देगी, समवॉट डिफरेंट सुनाई देगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि चेंज क्यों हो रहा है। डन, ठीक है। सो हियर स्मॉल वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये देखो डिस्टेंस बढ़ गया है, दो वेव के बीच का डिस्टेंस, दैट वी विल कॉल समहाउ वी कैन रिलेट इट टू वेवलेंथ। ठीक है, एग्जैक्ट हम लोग कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं अभी, जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम वी कैन से कि जो इधर के वेव्स है उनका वेवलेंथ बढ़ रहा है, और जो इधर के वेव्स है सिंस वो क्राउडेड है उनका वेवलेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। वेवलेंथ घटने का मतलब फ्रीक्वेंसी हाई, क्योंकि मैंने प्रीवियस डायग्राम में बनाया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेवलेंथ कितना होगा, ये होगा, और यहाँ पे वेवलेंथ कितना है, इतना है। सो वेवलेंथ हायर मीन्स फ्रीक्वेंसी लेस, वेवलेंथ lower means frequency high. So same thing is said here in the diagram. What is said? Okay, this is what long wavelength low frequency, and in this region small wavelength high frequency. ठीक है, अब देखो हमने कॉन्सेप्चुअली इस चीज को समझ लिया। नाउ मैथमेटिकली वी विल ट्राई टू डिराइव की व्हाट चेंज इन फ्रीक्वेंसी विल अकर। ठीक है, अगेन दिस इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, लेकिन एक कन्वेंशन है जो कि तुम्हें याद रखना है। वो कन्वेंशन क्या है, हमारे पास सोर्स होगा हमेशा ही, जो भी डिस्कशन डॉपलर इफेक्ट में करेंगे वी विल सी देयर विल बी वन सोर्स एंड देन देयर विल बी वन ऑब्जर्वर। ठीक है, सो कन्वेंशन क्या है, डायरेक्शन फ्रॉम ऑब्जर्वर टू सोर्स, ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ का जो डायरेक्शन है ना उसको हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और ऑब्जर्वर से सोर्स के अवे जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। अगेन इस कन्वेंशन का यूज क्या होगा, वाइल डेरिवेशन आई वोंट यूज इट, आई वोंट यूज इट मतलब वो यूज हो रहा होगा, लेकिन अगर मैं बार बार कन्वेंशन की बात करूंगी ना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सो वाइल डेरिवेशन मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन जब फाइनल डिस्क्रिप्शन आएगा ना वहां पे फॉर्मूला को इजीली रिमेम्बर करने के लिए वी विल रिकॉल दिस कन्वेंशन एंड वी विल गेट इट डन। ठीक है, चलो, सो दिस इज द कन्वेंशन। तुम लोग याद रखना, क्योंकि मैं बोलती बहुत जल्दी हूँ, तो मैं तुम लोगों से पूछूंगी फाइनली जब रिकॉल कर रही होंगी तब। सो आई होप यू विल रिमेम्बर। नाउ पहला क्या है, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। अब देखो मैं यहाँ बहुत सिंपल चीज करने जा रही हूँ, हियर देयर इज अ सोर्स, डेरिवेशन करने जा रही हूँ। ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा सिंपल होगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, इसलिए ध्यान से देखना। दिस इज द सोर्स। ठीक है, अब ये सोर्स है और सपोज कर लो यहाँ पे तुम खड़े हो, दैट इज ऑब्जर्वर, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सोर्स इधर मूव कर रहा है। ठीक है, सोर्स की वेलोसिटी मैंने वीएस ले ली। डन, नाउ एट t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो मैं ये मान रही हूं कि मेरा सोर्स यहाँ है, कहाँ पे है, जहां पे अभी दिख रहा है। सो एट t इक्वल टू जीरो सोर्स इज एट पॉइंट A सपोज। डन, एंड एट t इक्वल टू जीरो इट इज जनरेटिंग अ वेव और अ पल्स। सपोज कर लो इसने एक पल्स, यहाँ पे जो हमने सोर्स लिया है वो क्या जनरेट कर रहा है, एक पल्स जनरेट कर रहा है। सो ऐसे ऐसे ये टाइम के साथ जनरेट करता रहेगा। ठीक है, so at t equal to 0 it generated distance between source and observer, take at initial distance L ले लो, initially means t equal to 0, so L है। t equal to 0 पे source generated a pulse, now this pulse got generated and it will travel towards observer, so observer के पास ये पहुंचेगा। ऑब्जर्वर के पास पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सो मैं फर्स्ट पल्स की बात कर रही हूँ।
ठीक है, फर्स्ट पल्स को ऑब्जर्वर के पास पहुंचने में सपोज t1 टाइम लगा, सो t1 टाइम का वैल्यू कितना होगा, पल्स विल ट्रेवल हाउ मच डिस्टेंस, l. Let's say velocity of wave, that is velocity of pulse, is v. So कितना टाइम लगेगा, l by v. So first pulse को ऑब्जर्वर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, l by v. नाउ सेकेंड पल्स भी जनरेट होगा, कितने टाइम बाद सेकेंड पल्स जनरेट होगा, टाइम पीरियड के टाइम के बाद. क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि एक एक कंप्लीट वेव यहां से यहां तक जनरेट होने में जो टाइम लगा है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड. अगर मैं पल्स की बात कर रही हूँ तो पल्स सिंपल ऐसा होता है, इसके लिए टाइम पीरियड का मतलब ये कंप्लीट फॉर्म को जनरेट होने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड. डन. सो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि उतने टाइम में एक पल्स जनरेट होगा. डन. सो फर्स्ट पल्स अगर t इक्वल टू 0 टाइम पे जनरेट हुआ है तो सेकेंड पल्स कब जनरेट होगा, सेकेंड पल्स कब जनरेट होगा ये बताओ, टाइम पीरियड के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद, दैट इज लेट्स से टाइम पीरियड टी नॉट है. यहाँ पे इसका यहाँ पे टाइम पीरियड को क्या मान लो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, सो टाइम पीरियड ऑफ सोर्स क्या मैं ले रही हूँ, टी नॉट. ठीक है, सो जब वो सेकेंड पल्स जनरेट करेगा टी नॉट टाइम पे, उस टाइम पे हमारा सोर्स कहाँ होगा, सोर्स हैज अ वेलोसिटी, सो सोर्स मस्ट हैव ट्रेवल्ड समवेयर हियर. और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा, सेकेंड पल्स टी नॉट टाइम के बाद जनरेट हो रहा है, सो टी नॉट टाइम में सोर्स कितना मूव किया होगा, वी एस टी नॉट. ठीक है, सो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, वी एस टी नॉट. यहाँ पे सोर्स है और वो यहाँ से पल्स जनरेट कर रहा है. ठीक है, नाउ दिस पल्स विल रीच टू द सोर्स इन हाउ मच टाइम, सो t2 ले लो, t2 टाइम पे, यानी कि पहला पल्स कितने टाइम पे पहुंचा, l by v. पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा पल्स कितने टाइम के बाद ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगा, पहली बात दूसरे पल्स को जनरेट होने में ही टी नॉट टाइम लग गया, और जनरेट होने के बाद वो कुछ समय लेगा इस डिस्टेंस को चलने में, और वो कितना टाइम लेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, l माइनस वी एस टी नॉट. सो दिस इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ वेव दैट इज v. सो नाउ लेट मी नो t1 t2 में किसी को चाप है, anyone having any doubt in t1 t2? किसी को t1 t2 समझने में प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से. सब चुप हो, क्या हुआ, नहीं समझ में आया? कम ऑन. ठीक है, मैं आगे ही पढ़ रही हूँ बट तुम लोग मुझे बताना अगर कुछ डाउट हो तो. सो यहाँ पे क्या था, हमारा ऑब्जर्वर था, नो डाउट मैम, ओके. और यहाँ पे तुम्हारा क्या था, सोर्स था, सोर्स इधर की तरफ जा रहा था. ठीक है, पहला पल्स यहाँ पे कब पहुंचा, फर्स्ट पल्स यहाँ पे कब पहुंचा था, दैट रीच्ड इन टाइम l by v. सेकेंड पल्स हमारा कब पहुंचा, टी नॉट प्लस एल माइनस वी एस टी नॉट बाई वी, इतने टाइम में पहुंचा. दो पल्स के पहुंचने के टाइम के बीच में डिफरेंस क्या है, जैसे अगर तुम्हारा, अगर सपोज कर लो सोर्स और ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहे होते तो पहला पल्स, जैसे मैं, अच्छा ओके, मैं ये कह रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू अंडरस्टैंड इन मोर बेटर वे. ठीक है, सो ऑब्जर्वर है, सपोज करो दोनों मूव नहीं कर रहा, सो यहाँ से जो भी पल्स निकला t0 पे वो ऑब्जर्वर तक पहुंचा कितने टाइम के बाद, l by v. दूसरा पल्स कितने टाइम के बाद जनरेट होगा, t नॉट. सो दूसरा पल्स पहुंचेगा t नॉट प्लस l by v. डिस्टेंस तो अगेन सेम ही कवर करना होगा पल्स को, बिकॉज देर इज नो मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर. और यहाँ पे अगर दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस देखो तो टी नॉट ही है, यानी कि ऑब्जर्वर के पास जो साउंड पहुंच रहा है उसका टाइम पीरियड भी सेम एज द टाइम पीरियड ऑफ सोर्स है. डन. सो इसलिए यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी. बट इस केस में अगर तुम देखो
जो हम केस डिस्कस कर रहे थे उस केस में फर्स्ट पल्स पहुंचा इतने टाइम पे, सेकेंड पल्स पहुंचा इतने टाइम पे, दोनों के पहुंचने के बीच का गैप कितना है. सो इफ आई टॉक अबाउट गैप, सो दैट गैप विल बिकम द टाइम पीरियड गेटिंग नोटिस्ड बाय ऑब्जर्वर. सो एपरेंट टाइम पीरियड टी डैश मैं बोलती हूँ, और टी डैश का वैल्यू क्या होगा, टी नॉट प्लस एल माइनस वी एस टी नॉट बाई वी माइनस हाउ मच, एल बाई वी. सो अगर आप इसको ब्रेक करोगे, टी नॉट प्लस एल बाई वी माइनस क्या होगा, वी एस टी नॉट बाई वी माइनस एल बाई वी. दिस विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट वी माइनस वी एस टी नॉट बाई वी. सो अपेरेंट टाइम पीरियड हमारा कितना आया, टी डैश हमारा कितना आया, v माइनस वी एस बाई वी टी नॉट, इतना आया है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो 1/t' करोगे, 1/t' अगर करोगे तो ये हो जाएगा v बाई वी माइनस वी एस इंटू 1/t0. और तुम्हें पता है t0 क्या था, टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स. सो 1/t0 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, एंड t' क्या था, टाइम पीरियड ऑफ द वेव रीचिंग ऑब्जर्वर. ठीक है, सो 1/t' क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी गेटिंग हर्ड बाय द ऑब्जर्वर. सो f डैश क्या हो जाएगा, v बाई वी माइनस वी एस इंटू एफ नॉट. एफ नॉट इज व्हाट, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स. ठीक है, एंड एफ डैश क्या है तुम्हारा, फ्रीक्वेंसी गेटिंग हर्ड बाय ऑब्जर्वर. ठीक है, सो दिस इज एफ डैश. इसी तरह से तुम सारे कैलकुलेशन को कर सकते हो. अगर मैं बहुत इजीली अब तुम्हें करके दिखाऊं, यहाँ पे सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, सेकंड केस. सो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, अब देखो फास्ट करते हैं हम लोग. यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है. सोर्स, यहाँ भी सोर्स ही मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर इज नॉट मूविंग. सो दिस इज मूविंग अवे, इधर मूव कर रहा है. ठीक है, वीएस वेलोसिटी से. डन. अगेन डिस्टेंस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने एल मान लिया. डन. फर्स्ट पल्स अगेन गेटिंग जनरेटेड एट t इक्वल टू 0. सो फर्स्ट पल्स कितने टाइम पे ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगा, फर्स्ट पल्स के लिए अगर मैं टाइम t1 लू तो अगेन l बाई वी होगा, जहां पे v तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है. यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो मैं तुम लोगों के लिए लिख दूं कि दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव. मैंने बोला बहुत बार है बट लिखा नहीं, तो लिख देना भी चाहिए. फर्स्ट पल्स इतने टाइम के बाद पहुंचेगा. अब देखो सेकेंड पल्स टी नॉट टाइम के बाद जनरेट होगा. टी नॉट टाइम में सोर्स कहाँ पहुंच गया होगा, कहीं यहाँ, यानी कि कितने डिस्टेंस पहुंच गया होगा वो, वी एस टी नॉट. अब सोर्स जब यहाँ पे होगा तब वो सेकेंड पल्स जनरेट करेगा, यानी कि सेकेंड पल्स को पहुंचने का जो टाइम होगा, एक तो वो टी नॉट टाइम के बाद जनरेट हुआ है, और जनरेट होने के बाद भी उसको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. सो कितना टाइम एक्स्ट्रा और लगेगा, वी एस टी नॉट प्लस एल बाई वी. ठीक है, अगेन टाइम पीरियड दैट विल गेट नोटिस बाय ऑब्जर्वर कितना होगा, वो होगा t2 माइनस t1. दिस इज t डैश. सो t डैश अगर आप निकालोगे अगेन, सो यहाँ पे एल बाई वी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट एज how much value you are going to get, t naught plus vs t naught by v. So basically तुम्हें मिलेगा v plus vs by v t naught. ठीक है, अगेन t डैश मिल गया. अब देखो यहाँ पे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, अगेन क्या होगा, कितना होगा बताओ. अगर मैं यहाँ पे ही फॉर्मूला लिखूं तो f डैश का वैल्यू कितना होगा, v बाई v प्लस वी एस इंटू एफ नॉट. प्रीवियस केस में क्या आया था, v माइनस वी एस, अभी क्या आ रहा है, v प्लस वी एस. तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो देखो, जब सोर्स अवे मूव कर रहा है उस केस में हमारा एफ डैश का वैल्यू ये आया. ठीक है, और अगेन नाउ गो टू द साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन में मैंने क्या बोला था, डायरेक्शन किधर से किधर लेना था, मैं बोल चुकी हूँ. तुम लोग मुझे जल्दी से बताओ क्या था, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव था, हाय रब्बा कुछ तो बताओ तुम लोग, मेरी तरह तुम लोग भी भूलते हो, मुझे कुछ याद नहीं रहता जल्दी. अब देखो कौन सा कन्वेंशन था, ऑब्जर्वर टू द सोर्स,
ऑब्जर्वर टू द सोर्स क्या था तुम्हारा, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। सो पॉजिटिव कौन सा डायरेक्शन लेना है, ऑब्जर्वर टू सोर्स, हमेशा इस डायरेक्शन को क्या लेना है, पॉजिटिव, एंड सोर्स टू ऑब्जर्वर को क्या लेना है, हमेशा नेगेटिव। अब देखो मैं फॉर्मूला में बैठा के तुम लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे जनरल फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी का, एफ डैश का जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एफ इंटू वी बाई वी प्लस माइनस वी एस। अब देखो प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे। सो वी एस इधर की तरफ है, इधर की तरफ, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मीन्स, यहाँ पे देखो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, सोर्स ये है, ये इधर मूव कर रहा है। सो ये डायरेक्शन का मतलब फ्रॉम ऑब्जर्वर टू सोर्स, ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है। सो यहाँ पे प्लस साइन जब लोगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगेन, अगर सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ठीक है, इफ यू like again you will get confused here, but so I don't want to, again you have understood the formula, right? Forget the convention, you have understood the formula, right? When source will move away from the observer, what will happen, frequency v by v plus vs into f naught, done. This v is velocity of wave and this is velocity of source. जब तुम्हारा सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर जाएगा तब v minus vs होगा, just remember this thing, okay? सिमिलरली एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकाला है, एपरेंट वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे रिलेटेड है, v बाई लैम्डा क्या होता है, f होता है। सो v इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा f। सो यहाँ पे f डैश की जगह तुम क्या लिख सकते हो, f डैश की जगह लिख सकते हो v बाई लैम्डा। सो अगर मैं f डैश की जगह यहाँ पे लिखूं v बाई लैम्डा, तो ये किसके बराबर होगा, f की जगह भी क्या लिखोगे, v बाई, this is lambda dash, so this is lambda naught and v by v plus vs। सिंपल है, फॉर्मूला बस लाना है। अगर तुम्हें एपरेंट वेवलेंथ पूछता है तो सो लैम्डा डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पे देखो लैम्डा नॉट को मिस किया है फॉर्मूला में। सो लैम्डा नॉट v प्लस vs, लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने, ओके, वी शुड नॉट रश इनटू दिस एक्चुअली। ठीक है, चलो ठीक है, कल के क्लास में मैं इसको रैप अप कर दूंगी क्योंकि टाइम काफी हो गया है, काइंड ऑफ डन। सो डोंट गेट कंफ्यूज, डॉपलर इफेक्ट वी आर ऑलमोस्ट डन विद दैट। मैंने तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, फाइनलाइजेशन वी हैव नॉट डन इट। फाइनलाइजेशन कहने का मतलब जो कन्वेंशन में बोल रही थी उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, आई विल टेक यू थ्रू। बट उससे भी पहले हम लोग उस फॉर्मूला को देख लेंगे कि जब ऑब्जर्वर मूव करेगा, सोर्स रेस्ट में होगा, तब क्या होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हमें थोड़ा सा इसको डील करना पड़ेगा फॉर सम टाइम, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, whatever will be the plan will be communicated to you, okay? So thank you everyone, thank you for your patience and everything. Last time, in the last it was more a confusion क्योंकि I tried to sum it up in a very little amount of time, so it was a bad idea, sorry for that। bye bye, take care everyone, in the next class I will do that, don't worry, ठीक है, चलो bye।